Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the holy name of the Lord. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Yahuwah. Yahuwah Elohim El Shaddai. Yahushua HaMashiach. Bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we bless your holy name. We praise your holy name, Lord Jesus. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Hallelujah. We exalt you, Jesus of Nazareth. We exalt you. We exalt you. Hallelujah. Hallelujah. We exalt your holy name. Exalt your holy name. Exalt your holy name. Hallelujah. 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 Exalt you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord Jesus, we glorify your holy name. Lord Jesus, we glorify your holy name. Lord Jesus, we glorify your holy name. Lord, we come into your sacred presence through the blood that was shed on the cross of Calvary. Precious atoning blood of the Mashiach has paved a new and a living way. Thank you that the blood created the way, and this is new and living way. This is not the way of religion or tradition, but this is the way of revelation and the way that is living, as the blood of Yahushua HaMashiach is a living entity in himself. So Lord, we come through that path, the path of glory, into your presence, and we all congregate to worship you now. Hallelujah. We rally around your throne. सभी परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द इकट्ठा हों और परमेश्वर की स्तुति करें. हालेलुया. हालेलुया. सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा. मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा. मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा. मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था. मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था. स्वर्ग को छोड़ के जगत में आया, वो मुझे बचाने को.
सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सब मिलके साम 119 गाएं। साम 119, ज़बूर 119 पंजाबी में। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह तेरे कलाम दे माफक चले, रखे ओदे ते निगाह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। तैनू मैं ढूंढिया मैनू ना होण दे, अपने रावां तो गुमराह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह तेरे कलाम दे माफक चले, तेरे कलाम दे माफक चले, रखे ओदे ते निगाह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह। तू खुदावंद तन है सो मैनू अपनी शराह सिखला, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह कीता बयान तेरे सारे नयां दा, मेरियां होठां ने सदा, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह तेरी शराह तो हुण ऐसा खुश हाँ, तेरी शराह तो मैं हुण ऐसा खुश हाँ, जिवें खजाना है मिला, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we come before your throne of grace and mercy. And Lord, we come through the blood of your Son Jesus. And Lord, we come not because of who we are. We come because of who Jesus is. And we come solely clinging to all that he did on the cross of Calvary. We present ourselves before you through his blood. Through his atoning blood, Lord, we present ourselves. We pray, Lord, may you see us through the precious, living, soul-cleansing blood of Yahushua HaMashiach as we come before you
And as we call you Abba Father, the greatest privilege that you bestowed upon us is this, that we can call you Abba. We can call you Avinu Malachinu. We can call you Abun Dwashmayo. Hallelujah. Thank you, Father, for this privilege. Thank you, Father, for this honor of calling you Daddy, calling you Abba. Hallelujah. 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 The glorious Creator of heaven and the earth. We give you praise. We give you praise. We give you praise, King of glory. We give you praise. King of glory, we give you praise. We give you praise. Hallelujah. We give you honor, Lord. We give you praise. We bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Father, we bless your holy name. We bless your holy name, precious Father. Bless your holy name, holy name, holy name, holy name. Bless your holy name, precious Father. We bless your holy name, bless your holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless your holy name, precious Father. We bless your name, we bless your name. We bless your holy name, we bless your holy name. Oh, King of glory, 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 King of glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We pray that you would pour your fresh anointing. Pour your fresh anointing oil upon us. Hallelujah. Lord, pour your fresh anointing oil upon us. We pray in the name of Yahushua HaMashiach. Pour out your fresh anointing oil on us, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Father. Thank you, Alpha and the Omega. Thank you. Thank you, gracious King of glory. We bless you. We bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें. हालेलुया. सब प्रार्थना करें मेरे साथ. जो प्रार्थना हमारे स्वामी ने हमें सिखाई, प्रभु ने हमें सिखाई, आइए हम सब मिलके वो प्रार्थना करें. हमारा प्रभु इस रीति से प्रार्थना करता था. हालेलुया. द लॉर्ड्स प्रेयर प्रभु की ज़ुबान में इस तरह है. आवून द्वाश माया, आवून द्वाश माया, नित्य दाशमः तेचे हे माल खुतक, नित्य दाशमः तेते हो माल खुतक, नेवे सेवियाना अखना द्वाशमया अफ बरहक, हौलान लखमा सुखानन यौमाना वश वखलान हावेन, इखाना दफखनान शवखन लखाइवेन, ला तख निश्योना एल पासन मीन बिसा, मिथल इलाही मलखुता खाइला तशवख्ता लख आलम आलमीन आमीन. हालेलुया. मेरे संग संग बोलने की कोशिश करें. आवून द्वशमया, ये हमारे स्वर्गीय पिता, इसे बोलते हैं आवून द्वशमया.
आवुंदवश्मय नित्यदाशमाख, मेरे संग कहें नित्यदाशमाख, तेते हे मालखुताख, तेते हे मालखुदाख, नेहवे सेवियाना अहखना द्वश, नेहवे सेवियाना अहखना द्वाशमया आफ बरहाख, हाउलान लाखमा सुखानन, यौमाना वाशवखलान हावेन, इखाना दफखनान श्वखन लखाइवेन, लाताख निचियोना यल्ला पासन min visa mitalilahi malchutach chayla tishvochta la alam almin आमीन हालेलुया। एक बार फिर प्रार्थना करें, यही प्रभु की प्रार्थना। अवून द्वशमया नित्यदाशमाख, तेते हे मालखुताख, नेवे सेवियाना अहखना द्वशमया आफ बरहाख, हाउलान लाखमा सुखानन, यौमाना वशवखलान हावेन, एखाना defchanan shwakan lahaiwen la tach nishiona ella passion min visha mital elahi malchuta khayla tishwukta lah alam almin amin. Hallelujah. Lord Jesus, your will be accomplished in our lives. May our lives have only one agenda: to accomplish your will. May we live, Lord, to bring your kingdom in the earth. May our lives be like burning torches with shining your light in this dark world. Lord, blessed Lord, blessed King, deliver us from all the evil that stalks in the earth, and please provide us the daily bread, the daily bread, the bread that liveth forever, the bread that liveth forever, and that precious blood is you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Teach us to live for your kingdom, that we do not build our own empires here, that we do not live for our name, that we do not want to do our own ministries and establish our own infrastructure in the earth, but we live for your glory. We live for your glory, for your glory. Hallelujah. Lord, we bow before your majestic presence, and we make a vow that we live for your glory. तेरे ऑनर के लिए, तेरी ग्लोरी के लिए हम जिए खुदावंद। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, Lord. Bless your holy name, bless your holy name, bless your holy name, bless your holy name, bless your holy name. Hallelujah, hallelujah. Bless your holy name, bless your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो। हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो।
Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. 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 Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें प्रभु के सन्मुख। हालेलुया। प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने घरानों परिवारों को यीशु मसीह के लहू के सुपुर्द करें। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु। तेरे लहू की जय हो, 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 लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लहू की जय, 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 लहू की जय। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Lord, we bless your name. Lord, we praise your name. Lord, we praise your name. Lord, we praise your name. Lord, we turn to you wholeheartedly. We turn to you wholeheartedly, Lord. Lord, you have promised in your word that you will keep us from the plague. Lord, that you will keep us from the sword. Lord, you will keep us from the famine. You will keep us from the pestilence. And you will keep us from the beast, Lord. Hallelujah. Lord, if we hearken unto your voice and if we walk in your ways, hallelujah, you will protect us. You will keep us under the shadow of your wings, Lord God. Hallelujah. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु। मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हम तेरी ओर देखते हैं, तेरे वचन की ओर देखते हैं। लॉर्ड, ओपन अप योर वर्ड टू अस and speak to us through your word. In the mighty name of Yahushua HaMashiach. Amen. Hallelujah. आप सबको जय यीशु मसीह की। मैं एक छोटा सा पैगाम परमेश्वर के वचन में से आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं आपको
अक्सर बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन में से, आप पुराने नियम की 39 बुक्स में आप एक फ्रेज़ पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली प्रॉफिट्स में और तोरा में, बुक ऑफ मोजेस में। प्रभु यहोवा इज़राइल से कहता है, अगर तुम मेरे हुक्मों की पालना नहीं करोगे, मेरी विधियाँ, मेरे न्याय, मेरे स्टैचूज़, मेरी डिक्रीज़, उनकी ओर अपनी पीठ मोड़ोगे और मेरी आवाज़ को नहीं सुनोगे, और तुम पराई कौमों जैसे छिनाले के घिनौने काम करोगे, और तुम बाल और ग्रोव्स, दो टर्म्स हैं बाइबल में, बेल एंड ग्रोव, दीज आर टू पर्टिकुलर टर्म्स, they originate from Babylon. Babylon, the ancient Babylon, the Tower of Babel that Nimrod was building. वहाँ से ये पूजा पद्धति शुरू हुई, शैतानी पूजा, शैतानी आराधना का पूरा जो सिस्टम बाबुल के बुर्ज से शुरू हुआ है। बाल और अश्तरोथ की पूजा, निम्रोद और सेमेरामस और तमूज की पूजा। परमेश्वर इसे अपने वचन में कहता है बाल एंड ग्रोव, और ये पूरी अन्य जाति में फैल गई बाबुल के बुर्ज के बाद। तो प्रभु कहता है, यदि तुम ये काम करोगे, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है। आपको मालूम, परमेश्वर अपने लोगों के साथ वाचा बांधता है। परमेश्वर अपने लोगों को कोई धर्म नहीं देता है, परमेश्वर कोई धर्म या कोई नई संस्कृति नहीं चलाता है। परमेश्वर एक कवनेंट बांधता, वाचा, और हिब्रू वर्ड है बेरीथ, बेरीथ, जिसका मतलब होता है काटना, टू कट एंड शेड द ब्लड, दैट इज बेरीथ। और ग्रीक वर्ड है डायाथेके। परमेश्वर एक कवनेंट बांधता है। आपको मालूम, ये जो पुस्तक है यहोवा परमेश्वर की, जिसे हम बाइबल कहते हैं, इसका असली नाम बाइबल नहीं है। बाइबल एक जर्नल टर्म है, बिब्लिया या बिबलॉस, जिसका मतलब होता है बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह है। लेकिन इस पुस्तक का असली नाम है बेरीथ, कवनेंट, वाचा, डायाथेके। इसलिए जब आप बाइबल के अंदर खोलते हो तो आप पढ़ते हो दी ओल्ड कवनेंट एंड द न्यू कवनेंट। ये वाचा है परमेश्वर की। यदि परमेश्वर की वाचा को आप तोड़ोगे तो प्रभु वाचा की पूर्ति करने की बरकतें और वाचा के तोड़ने के श्राप, मैं आप सबको आग्रह करता हूँ, व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय पढ़ें। पूरा मेमोराइज करना चाहिए हम लोगों को। ये पहली 14 आयतों में, वर्सेस में अनकैनी ब्लेसिंग्स हैं। ऑल द ब्लेसिंग्स दैट परटेन टू द अर्थ एंड सुपरनैचुरल ब्लेसिंग, दे आर ऑल mentioned from verse number 1 to verse number 14. But the only condition is verse number 1, if you will hearken unto my voice, if you will keep my commandments, if you will honor my statutes and my decrees, and if you will do what I bid you to do, then I will bless you. यह conditional covenant है। यदि तू मेरी आज्ञा को माने, मेरी विधियों, मेरे हुक्मों की मंचित लगा के पालना करे, तो मैं तुझे ये बरकत दूंगा, तो मैं तुझे ये बरकत दूंगा, तो मैं तुझे ये बरकत दूंगा, तो मैं तुझे ये तो मैं तुझे ये बरकत दूंगा, तो मैं तुझे, पढ़ते जाइए वहाँ पे। You cannot even count the blessing that God will pour. He says that there will not be enough room to contain my blessing. अगर आप परमेश्वर की वाचा में बंध के जीवन गुजारेंगे, अगर परमेश्वर की वाचा में आप जीवन नहीं गुजारेंगे, तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, मैंने आपको बताया, ये टर्म देखें बार बार, ओवर 70 टाइम है ओल्ड टेस्टामेंट में। प्रभु कहता, तो मैं तुम्हारे ऊपर तलवार भेजूंगा। फिर प्रभु कहता, मैं तुम्हारे बीच में अकाल भेजूंगा। फिर प्रभु कहता, मैं तुम्हारे बीच में मरी भेजूंगा, प्लेग या पेस्टिलेंस। अभी जो पृथ्वी पे चल रही है ये पेस्टिलेंस है, ये प्लेग है। बहुत सारे एरोगेंट और इग्नोरेंट पास्टर
अभी भी ये मान रहे हैं कि ये यहोवा की जजमेंट नहीं है. सो ब्लाइंड, सो करप्ट, because they have preached a corrupt pseudo gospel of love. They do not know the ways of God. They do not know how God works. They do not know His decrees, His statutes, His commandments. They do not understand the velocity of God. They have no clue about His modulus operandi. So they just deceive people with their motivational preaching. They continue to keep motivating the sinners in the pews. They do not show them the true word of God. प्रभु ने कहा फॉल्स प्रॉफिट आएंगे, बाढ़ आएगी उनकी अंत के दिनों में, फॉल्स अपोस्टल, फॉल्स टीचर्स की. तो खैर अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता. तो प्रभु क्या कहता है कि मैं तलवार भेजूंगा. ये तलवार है जब अन्य जाति के लोग, किंगडम्स, राजे तुम्हें ओप्रेस करेंगे. फिर फैमिन आएगा और फिर पेस्टिलेंस, प्लेग. मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आह्वान करता हूँ, पुराने नियम में स्टडी करें. जहाँ जहाँ वर्ड प्लेग आता है ओल्ड टेस्टामेंट में, उसे मार्क करें. ढूंढिए लेक्सिकन, खरीदिए लेक्सिकन, पढ़िए, ढूंढिए, सब वर्ड मार्क करें जहाँ प्लेग आया या पेस्टिलेंस आया. आप हैरान होंगे, जो हिब्रू वर्ड हैं रूट में, वो देवताओं के नाम हैं अन्य जाति के. कसदियों के देवता, अकेडियन के देवता, कैनानाइट गॉड्स, इजिप्शियन गॉड्स, उनके नाम हैं जहाँ जहाँ वर्ड प्लेग है. प्लेग, पेस्टिलेंस, वायरस जो होते हैं, ये अपने आप में डेड ऑर्गेनिज्म है, बट दे आर ईवल एंटिटीज. दे आर विशस ईवल स्पिरिट्स दैट स्टॉक इन द अर्थ. परमेश्वर अपने अनुग्रह के हाथ को हटाता है और उन्हें परमिशन मिलती है पृथ्वी के ऊपर हैवक क्रिएट करने की. आपको मालूम कितने मिलियन, सेवरल मिलियंस हैव बीन इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस नाउ. सेवरल मिलियन. तो प्रभु चौथी बात क्या कहता है? कहता है यदि तुम फिर भी मेरी आवाज़ को नहीं सुनोगे, फिर भी तौबा नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तो प्रभु कहता है फिर मैं बीस्ट भेजूंगा. बाइबल्स के अंदर उसको ट्रांसलेट कर दिया जंतु हिंदी में, लेकिन बीस्ट क्या है? बीस्ट एम्पायर्स हैं, वर्ल्ड एम्पायर्स, जो इसराइलियों को ओप्रेस करती थी और गुलाम बना के ले जाती थी अपने देशों में, और कई कई साल उन देशों में गुलाम बने रहते थे इसराइली लोग. ये 4 ढंग हैं परमेश्वर के सजा देने के, सुन लीजिए. परमेश्वर कहता है मैं सोड भेजूंगा. परमेश्वर कहता है मैं फैमिन भेजूंगा. परमेश्वर कहता है मैं प्लेग भेजूंगा, पेस्टिलेंस, वायरस. और परमेश्वर कहता है मैं बीस्ट भेजूंगा. दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग. पढ़ें कलाम, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे. हालेलुया. मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक राजा के राज्य का समय दिखाना चाहता हूँ. मेरे संग निकालें दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 30. दूसरा इतिहास और उसका 30 अध्याय. 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 30 अध्याय दूसरे इतिहास का. सुनिए, यहाँ पे एक राजा के विषय में लिखा है, उसका नाम है हिजकिय्याह. हिजकिय्याह, हालेलुया. हिजकिय्याह, यहोवा मेरी स्ट्रेंथ है. हालेलुया. And Hezekiah sent to all Israel and Judah and wrote letters also to Ephraim and Manasseh that they should come to the house of the Lord at Jerusalem to keep the Passover unto the Lord God of Israel. For the king had taken counsel and his princes and all the congregation in Jerusalem to keep the Passover in the 2nd month. इज़राइल के एक राजा ने, जिसका नाम हिजकिय्याह है, उसने इज़राइल और यहूदा में भी मैसेज भेजा और उसने इफ़राइम और मनस्से को भी मैसेज भेजा
कि सभी हम इकट्ठे हों यरूशलेम में और अपने परमेश्वर यहोवा एलोहीम इज़राइल के परमेश्वर के सन्मुख फसह के पर्व को मनाएं, क्योंकि बहुत समय गुजर गया। कितनी डेकेड गुजर गई हैं, कितनी डेकेड्स गुजर गई हैं इज़राइल को। इज़राइल बेमुख हुआ है परमेश्वर से, इज़राइल अंधकार में डूबा है और यहूदा भी बेमुख हुआ है और परमेश्वर के हुक्मों और विधियों पे चलना इन्होंने बंद कर दिया है। परमेश्वर की व्यवस्था इनकी आंखों से ओझल है और इज़राइल उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य दोनों ही बालीमों की पूजा कर रहे हैं, बाल देवता और ग्रोव की, अश्तरोत की पूजा कर रहे हैं, बाल और ग्रोव की, बाबिलोन के झूठे मजहबों और धर्मों की उपासना कर रहे हैं। और इन्होंने जीवित परमेश्वर यहोवा जो अपनी भुजा को बढ़ा के मिस्र की भट्ठे जैसी गुलामी की पीड़ा को दूर करके इन्हें उकाब के पंखों पे बिठा के दूध और शहद जहाँ बहता है उस खूबसूरत देश की धरती पे लेकर आया और उन दाख बारियों का मालिक बनाया जो उन्होंने लगाई नहीं, और इंजीर के दरख्तों के ऑर्चर्ड इनको दिए जो उन्होंने प्लांट नहीं किए, और वो ज़रखेज़ ज़मीन दी, भूमि दी जहाँ पे बहुतायत से उपज पैदा होती है, और वो देश जो पहाड़ों का और तराइयों का देश जहाँ पे यहोवा परमेश्वर प्रथम वर्षा को भेजता और अंतिम वर्षा को भेजता है, वो खूबसूरत देश जो यहोवा के अनुग्रह से सींचा जाता है, उस देश के वारिस किया। लेकिन जो उत्तरी इज़राइल था, नॉर्दर्न किंगडम, वो सुलेमान के नौकर के हाथ में आ गई और उसने दान में और बैतल में सोने के बछड़े खड़े कर दिए और पूरी इस्राएली प्रजा से कहा, यही हमारा देवता जो मिस्र से हमें छुड़ा लाया। और पूरे इज़राइल को, इज़राइल का मतलब 10 गोत्र थे वहाँ पे, ऑलमोस्ट 9.5 गोत्र, उनको उसने सदर्न किंगडम में, दक्षिणी राज्य में, यहूदा में, जहाँ पे यरूशलेम में यहोवा की हैकल थी, जाने से मना करवा दिया। एक नया धर्म, एक नया रिलीजियस सिस्टम, एक नया डेरा स्थापित किया 2 जगह पे और लोगों को एंगेज कर दिया कि लोग उसी डेरे के अंदर रहें, और शैतानी पूजा की पद्धति शुरू करवाई और 10 गोत्र एकदम यहोवा से कट गए, पथ भ्रष्ट हो गए, शैतान उन्हें आहेर करके ले गया। लेकिन हिजकिया नाम का राजा उठा और एक बेदारी की लहर आई और इसने पूरे इस्राएल को यूनाइट करने का आह्वान किया, सबको चिट्ठियां लिख के भेजी, आओ हम यहोवा की उपासना करें, आओ हम अपने प्रभु की शरण में आएं, हम बालीमों की पूजा करते हैं, हम ग्रोव की पूजा करते हैं, हम कस्तियों के देवताओं की, गिरगिशाइटों के देवताओं की, हम अमालेकियों के देवताओं की उपासना करते हैं। यहोवा ने कहा, यह घिनौने काम तुम मेरे सन्मुख मत करना, वरना मेरा क्रोध, मेरा कोप तुम्हारे विरोध में भड़केगा। हम क्या कहता है 3रे वचन में, फॉर दे कुड नॉट कीप इट that time because the priest had not sanctified themselves sufficiently, neither had people gathered themselves together in Jerusalem, and the thing pleased the king and all the congregation. They established a decree to make proclamation throughout all Israel from Beersheba even to Dan. दान से बेरशेबा, जब आप फ्रेज पढ़ते हो इसका मतलब होता है जैसे हम इंडिया में बोलते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी. This is the phrase that Jews used. They said from Dan to Beersheba, from Beersheba to Dan, that they should come and keep the Passover unto the Lord God of Israel at Jerusalem, for they had not done it of a long time in such sort as it was written. जैसे यहोवा के हुक्म में, वाचा में इज़राइलियों को आज्ञा दी गई, वैसा इन्होंने नहीं किया था. तो उत्तरी इज़राइल में मैसेंजर गए, हलकारे गए मैसेज लेके, लेकिन वो लोग पाप में इतना डूबे हैं और यहोवा परमेश्वर से इतना दूर हैं. वो क्या कहते हैं, 2 क्रॉनिकल 30 अध्याय का 10 वचन पढ़ें. सो द पोस्ट पास्ट फ्रॉम सिटी टू सिटी थ्रू द कंट्री ऑफ इफ्राइम एंड मनस्से. वो नॉर्दर्न किंगडम में भी चले गए, इवन अनटू ज़ेबुलून,
बट दे लाफ्ड देम टू स्कॉर्न, दे मॉक्ड देम। वो क्या कर रहे थे? जो हलकारे थे, जो मैसेज लेके गए थे, आओ हम अपने परमेश्वर यहोवा की फसाह को मनाएं, आओ हम अपने प्रभु यहोवा की ओर मुड़ें। वो लोग जो अशेरा की, जो बालीमों की और ग्रोव की पूजा करते थे, शैतान के अंदर जकड़े थे, वो इन हलकारों का मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे उन्हें। आपको मालूम भजन 22 की 7 में क्या लिखा है? जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका है, क्या कर रहे थे वो लोग? जो सरपेंट का सीड थे, स्क्राइब, फारसी, सैदुसी, सदूकी, फरीसी, स्क्राइब, वो ठट्ठों में उड़ा रहे थे, हिला हिला के यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। हालेलुया। लेकिन 11 वचन में क्या लिखा है? 11 वचन में लिखा है, नेवरदलेस डाइवर्स ऑफ आशेर एंड मनस्से एंड ज़ेबुलून हम्बल्ड देमसेल्व्स एंड केम टू जेरूशलम। पर कुछ लोगों ने अपने आप को हलीम किया, अपने पापों का अंगीकार किया और यहोवा की शरण में मुड़े। ऑल्सो इन जूडा द हैंड ऑफ गॉड वॉज टू गिव देम वन हार्ट टू डू कमेंडमेंट ऑफ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। तो लिखा है 13 वचन में, एंड देयर असेंबल्ड एट जेरूशलम मच पीपल टू कीप द फीस्ट ऑफ द अनलेवन्ड ब्रेड इन द सेकेंड मंथ, अ वेरी ग्रेट कॉन्ग्रीगेशन। लोग पलटे, लोग मुड़े, काफ़ी लोग मुड़े। बहुतेरों ने ठट्ठा उड़ाया, लेकिन काफ़ियों ने अपना मन बदला, पश्चाताप किया और हम्बल हुए और प्रभु की ओर मुड़े। भाई और बहनों, इस समय लोगों को हम्बल होने की ज़रूरत है। इस समय आपको झूठे नबियों से मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं चाहिए। वो जो जुमले बोलते हैं ना, जो अमेरिकन पास्टर बड़े बड़े जुमले यूज़ करते हैं, क्रॉस ओवर सर्विस, यू नो, डबल पोर्शन मेंटल ऑफ द अनॉइंटिंग, योर बेस्ट इज़ येट टू कम, सुपर अबंडेंस ब्लेसिंग, सुपर डुपर प्रॉस्पेरिटी वाली मीटिंग, बरकतों की बारिश, ये जुमले छोड़िए सब। ये सिर्फ खाली जुमलेबाजियाँ हैं। सच्चे कलाम की ओर मुड़िए, दीनता विनम्रता से उसके चरणों में लिपटिए। आज मसीहत में सादगी नहीं है, बहुत फ्लैशी काम है, बनावटी, दिखावटी, कॉस्मेटिक एक्सटीरियर है, अंदर सामर्थ्य नहीं है कोई भी। प्रचार और जो जुमलेबाजी लिखी जाती है ना, बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी फैसिनेटिंग जुमलेबाजियाँ हैं। सच्ची बात तो ये है भाई और बहनों, अपने परमेश्वर यहोवा की शरण में आओ और तौबा करो, अपने पापों का अंगीकार करो। गंदगी से, पाप की गंदगी से भरे हम और दलदल में धंसे हैं गुनाह की। इसलिए पृथ्वी के ऊपर ये प्लेग आई है। जब परमेश्वर के कलाम को, जिनके हाथ में परमेश्वर का कलाम है, वो लोग जब परमेश्वर के कलाम को हलागा और हगाडा में बदलते हैं। जो वचन सुन रहे हैं, आप समझते होंगे हलागा और हगाडा का मतलब क्या है। ये बेबीलोन का तलमुड, जूइश लोग बेबीलोन के तलमुड का प्रचार करते थे, यहोवा के सच्चे वचनों का नहीं करते थे। वो अपना जीवन बेबीलोनियन तलमुड और गमारा, जो हगाडा और हलागा है, ओरल लॉ है, उसके अनुसार अपना जीवन बना रहे थे, यहोवा के कलाम के अनुसार नहीं। इसलिए उनके ऊपर लानत आई। आज भी परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से तरह तरह की ऐसी डिसेप्टिव डॉक्ट्रिन बना रहे हैं जो लोगों को डिसीव कर रही हैं। इसलिए प्लेग आ रही हैं, इसलिए प्लेग्स आ रही हैं। हालेलुया। अब पढ़िए 13 वचन, एंड देयर असेंबल्ड एट जेरूशलम मच पीपल टू कीप द फास्ट ऑफ द feast of the unleavened bread in the second month, a very great congregation. And they arose and took away the altars that were in Jerusalem, and all the altars for incense took they away and cast them into the brook of Kidron. And they killed the Passover on the 14th day of the second month, as the priest and the Levites were ashamed, and sanctified themselves and brought in burnt offering unto the house of the Lord God. Hallelujah. उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर एक मूर्ति को,
उन्होंने हर एक शैतानी ऑल्टर को, हर एक धूप दुखाने वाली जहाँ पे बालीमों को और ग्रोव की पूजा की जाती थी, उन सब को तोड़ दिया और चकनाचूर कर दिया और किद्रोन की नाले में फेंक दिया। हालेलुया। और फिर उन्होंने फसा के मेमने का वध किया और फसा को मनाया, और लिखा प्रीस्ट एंड लीवाइट्स वर अशेम्ड एंड दे सैंक्टिफाइड देमसेल्व्स एंड दे स्टूड इन द प्लेस आफ्टर their manner, 16 वचन, according to the law of Moses the man of God, the priests sprinkled the blood which they received of the hand of the Levites. तब उन्होंने मेमने का लहू छिड़का यहोवा की प्रजा के ऊपर। हालेलुया। For there were many in the congregation that were not sanctified, therefore the Levites had charge of the killing of the Passover for everyone that was not clean, to sanctify them unto the Lord. 18 वचन, for a multitude of the people of even many of Ephraim, Manasseh, Issachar, Zebulun had not cleansed themselves, yet did they eat the Passover. Otherwise, then it was written, but Hezekiah prayed for them, saying that the Lord pardon everyone. जो नॉर्दर्न किंगडम से आए लोग वो पाप की दलदल में धंसे हुए थे, क्योंकि वो बछड़ों की, सोने के बछड़ों की पूजा करते थे और वो अशुद्ध थे, तो भी वो शामिल हुए। और हिजकिया राजा ने उनके लिए प्रार्थना की कि हे यहोवा, हम तेरे हजूर में आए हैं, हमारे दिल की मनसा को जांच, हमारे हृदय की कामना को जांच। इस्राएल तेरी ओर मुड़ता है, इस्राएल अपने बुरे कामों पे शर्मिंदा है, अपनी बदकारियों को, अपने बुरे कामों को, अपनी जनाकारियों को, अपनी इमोरालिटी को, और जो जो घिनौने काम हमने किए उससे हम पश्चाताप करते हैं। यहोवा परमेश्वर राजा हिजकिया की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। इज़राइल यहोवा के साथ क्या हो जाता है? हालेलुया, मेल मिलाप कर लेता है। इज़राइल यहोवा के साथ मेल मिलाप कर लेता है और यहोवा इज़राइल के अधर्म को क्षमा करता है। हालेलुया। और पढ़िए आप, मैं और कुछ वचन देना चाहता हूँ इसके। 2 क्रॉनिकल्स 30 अध्याय का आपको देना चाहता हूँ 26 वचन। सो देयर वॉज ग्रेट जॉय इन जेरूशलम, यरूशलेम में आनंद हुआ। सिंस द टाइम ऑफ सोलोमन द सन ऑफ डेविड किंग ऑफ इजराइल देयर वॉज नॉट लाइक इन जेरूशलम। दाऊद के समयों में जैसा होता था, बहुत डेकेड्स के बाद वो काम फिर हुआ, सैकड़े साल हो गए शायद, फिर वो आनंद, फिर वो खुदा की हजूरी यरूशलेम में आई। फिर 27 वचन में लिखा, देन द प्रीस्ट द लीवाइट्स अरोज एंड ब्लेस्ड द पीपल एंड देयर वॉइसेस वाज हर्ड एंड देयर प्रेयर केम अप टू द होली ड्वेलिंग प्लेस इवन अनटू हेवन। हालेलुया। अभी लोग प्रार्थना तो बहुत करते हैं पृथ्वी के ऊपर, क्या आपकी प्रार्थना स्वर्ग चढ़ रही है? क्या आपको आपकी प्रार्थनाएं, जो बहुत बढ़िया बढ़िया बना के मीटिंगें करते हैं, बड़े बड़े उसको ज़बरदस्त नाम देते हैं मीटिंगों को, ये वो फलाना, क्या आप लोगों की प्रार्थनाएं स्वर्ग चढ़ती भी हैं? क्या यहोवा अपने कान झुका के उन प्रार्थनाओं को सुनता भी है? क्या उन प्रार्थनाओं के उत्तर भी आ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर? यहाँ पे लिखा है, तो यहोवा ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। यहाँ पे लिखा है, देयर प्रेयर केम अप टू हिज होली ड्वेलिंग प्लेस इवन अनटू हेवन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गंदे काम त्यागे, भाई और बहनों, घिनौने काम त्यागे, और जो गंदी चीज़ें थी ना उनके अंदर, वो उन्होंने निकाल दी और वो यहोवा के संग एक हो गए। हालेलुया। तब यहोवा ने उनके ऊपर कृपा की। परमेश्वर जब तक आप अपने बुरे काम, अधर्म, बदकारी नहीं छोड़ेंगे, कभी आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। पढ़ लीजिए वचन, गॉड इज एंग्री विद द सिनर्स, लिखा है कलाम के अंदर। जब आप अपनी बदकारी का परित्याग करेंगे, प्रभु की ओर मुड़ेंगे, प्रभु आप पे। अब इज़राइल यहोवा के संग चल रहा है। अब देखिए इज़राइल में क्या हो रहा है, इसका 32 अध्याय में आ जाइए। 2 क्रॉनिकल्स के 32 अध्याय में आ जाइए, जल्दी से जल्दी से आइए। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 32, यहाँ पे लिखा है उसके पहले वचन में, दूसरा इतिहास 32 के पहले वचन से, आफ्टर दीज थिंग्स द एस्टैब्लिशमेंट देयर ऑफ सेनकेरेब किंग ऑफ असीरिया केम and entered into Judah and encamped against the fenced cities and brought to win them for himself. And when Hezekiah saw that Sennacherib was come and that he was purposed to fight against Jerusalem, he took counsel with his princes and his mighty men
to stop the waters of the fountain which were without the city, and they did help him. So there was gathered much people together, who stopped all the fountains and the brook that ran throughout the midst of the land, saying, Why should the king of Assyria come and find much water? और आगे लिखा है, and he strengthened himself and built up all the wall that was broken, and raised up the towers and another wall without, and repaired Millo in the city of David, and the darts and the shields in abundance. हालेलुया। और सिनक्रिब राजा क्या करता है, मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ इसको, इसका 9 वचन पढ़ें। यहाँ पे लिखा है, आफ्टर दिस डिड सिनक्रिब किंग ऑफ असीरिया सेंड हिज सर्वेंट्स टू जेरूसलम, but he himself laid siege against Lachish and all his power with him, unto Hezekiah the king of Judah, and unto all the Judah that were at Jerusalem. राजा ने चिट्ठी लिख के भेज दी और लाकीश से लेके पूरे इज़राइल को घेरा डाल लिया, सेना लेकर आ गया। बहुत बड़ी सेना थी, 2 लाख की सेना थी। 2 लाख आज के लिहाज से भी बहुत बड़ा नंबर होता है। 2 लाख की सेना लेकर आ गया राजा, घेरा डाला। तो क्या कहता है, चिट्ठी भेजी, और क्या कहता है, 10 सेयत सेनक्रिब किंग ऑफ असीरिया, 10 वचन पढ़ें इसका। 10 सेयत सेनक्रिब किंग ऑफ असीरिया, वेयर ऑन डू यू ट्रस्ट दैट ये अबाइड इन द सीज ऑफ जेरूसलम। मैंने तो यरूशलेम को चारों ओर से घेरा डाला है, अब तू किस पे भरोसा रखता है, किस पे भरोसा रखता है? राजा को चिट्ठी लिख के भेजा। डोथ नॉट हेज़ेकियाह परसुएड यू टू गिव ओवर टू डाई बाय फैमिन एंड थर्स्ट, सेइंग द लॉर्ड अवर गॉड शैल डिलीवर आउट ऑफ द हैंड ऑफ द किंग ऑफ असीरिया। क्या वो चिट्ठी लिख के भेजता है इज़राइल की प्रजा के लिए भी, राजा के लिए भी? क्या जो हिजकिय्याह राजा है, क्या वो तुम्हें परसुएड कर रहा है, कायल कर रहा है कि तुम घेराबंदी में बैठे रहो और बाद में अकाल पड़ जाएगा और पानी भी पीने के लिए नहीं मिलेगा, और तब तुम्हें कौन मेरे हाथ से बचाएगा? क्या यहोवा इलोहीम तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा? Hath not the same Hezekiah taken away his high places and altars and commanded Judah and Jerusalem, saying, Ye shall worship before one altar and burn incense upon it? Know ye not that I and my father have done unto all the people of other land? Were the gods of the nations of those lands anyways able to deliver their lands out of mine hands? ये बड़ी लंबी चिट्ठी है, आप इसे पढ़िए खुद। 32 अध्याय खुद पढ़िए, 32 अध्याय ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा, उसने चिट्ठी लिख के भेजी और उसने ठट्ठों में उड़ाया, किसे? राजा हिजकिय्याह को और इज़राइल की प्रजा को और यहोवा परमेश्वर को। इस राजा ने बहुत से देश जीत लिए थे और यरूशलेम के पीछे से लाकीश से घेरा डाल लिया। चिट्ठी लिख के भेजा कि तुम्हें हिजकिय्याह कहता है यहोवा बचाएगा। मैंने अन्य जातियों को, इतनी कौमों को अपने तलवार से घात करके अपने अधीन किया, गुलाम किया। उनके देवी देवता उनको मेरे हाथों से नहीं छुड़ा सके। तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छुड़ा सकेगा। उसने स्वर्ग के जीवित परमेश्वर यहोवा को ललकारा और 2 लाख की बड़ी फौज लेकर आ गया। आपको मालूम, आप अगर पढ़ेंगे दूसरा राजा में चलिए, उसका 19 अध्याय, दूसरा राजा उसका 19 अध्याय और उसका मैं आपको देना चाहता हूँ 14 वचन से, 1-2 वचन देना चाहता हूँ। दूसरा राजा 19 अध्याय के 14 वचन से पढ़ें। एंड हेज़ेकिय्याह रिसीव्ड द लेटर the hand of the messenger and read it, and Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it before the Lord। वो चिट्ठी जो भेजी ना सेनक्रिब ने, जिसमें उसने ललकारा सेनाओं के यहोवा को, हिजकिय्याह राजा को, इज़राइल की प्रजा को, और कहा कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। उसने उस चिट्ठी को यहोवा के आगे फैला दिया। और 15 वचन, एंड Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubim, thou art the God, even thou alone, of all the kingdom of the earth, and thou hast made the heaven and the earth। हालेलुया। क्या अलौकिक प्रार्थना की उसने। कहा हालेलुया, यहोवा के आगे चिट्ठी ऐसे फैला के कहा,
लॉर्ड गॉड ऑफ इज़राइल, यहोवा एलोहीम, इज़राइल के यहोवा एलोहीम, तू जो करूबों के बीच में विराजमान है, तू प्रभु है, तू परमेश्वर है। पृथ्वी के सब राज्य, राष्ट्र, कौमें, गोत्र तूने बनाए हैं, तूने पृथ्वी और आकाश को रचा है। लॉर्ड बाउ डाउन दाइन ईयर, अपने कान झुका एंड हियर, और सुन। ओपन लॉर्ड दाइन आइज, अपनी आंखें खोल यहोवा, एंड सी एंड हियर द वर्ड्स ऑफ सेनक्रिब। हे यहोवा, सेनक्रिब उस घमंडी राजा के शब्दों को सुन। विच हैथ सेंट हिम टू रिप्रोच द लिविंग गॉड, जिसने जीविते परमेश्वर का मजाक उड़ाया है। देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत प्रार्थना है और कितनी क्लेवर प्रार्थना है। बहुत क्लेवर प्रार्थना है ये। राजा हिजकिय्याह ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर उसने मेरा मजाक उड़ाया है। कहता है यहोवा, ही हैथ सेंट हिम टू रिप्रोच द लिविंग गॉड, वो तुझे रिप्रोच कर रहा है यहोवा परमेश्वर। ऑफ अ ट्रूथ लॉर्ड किंग ऑफ असीरिया हैव डिस्ट्रॉयड द नेशंस एंड देयर लैंड्स। ये सत्य है कि असीरिया के राजा ने बहुत सारे राष्ट्रों को, बहुत सारे देशों को हरा दिया है और उन्हें गुलाम कर लिया है। एंड हैव कास्ट देयर गॉड्स इनटू द फायर, उनके देवताओं को आग में जला दिया है। एंड देवर नो गॉड्स, वो देवते, वो परमेश्वर नहीं थे, लकड़ी काट के देवता थे। बट द वर्क ऑफ मैन्स हैंड, मनुष्य के हाथ का काम थे। वुड एंड स्टोन, देयर फोर दे हैव डिस्ट्रॉयड देम, वो लकड़ी पत्थर काट के देवता थे, इसलिए उन्हें उसने हरा दिया। नाउ देयर फोर ओ लॉर्ड गॉड, आई बिसीच दी, सेव दाउ अस आउट ऑफ हिज हैंड। हालेलुया, हमें उसके हाथ से बचा। दैट ऑल द किंगडम ऑफ द अर्थ में नो दैट दाउ आर द लॉर्ड गॉड, इवन दाउ ओनली। हालेलुया, कि तू ही परमेश्वर है, तू ही यहोवा है, तू ही सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, ये प्रार्थना की और तब क्या हो गया, पढ़े 20 वचन। देन आइजाया सन ऑफ एमोज सेंट टू हिजकिय्याह saying, Thus saith the Lord God of Israel, that which thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria, I have heard. Hallelujah. इधर अपने महल में राजा हिजकिय्याह उस चिट्ठी को, हालेलुया, उसने लिया है और वो कहाँ चला गया है, हालेलुया, उसने उस चिट्ठी को परमेश्वर के चरणों में बिछा दिया है। और वचन में 14 वचन में लिखा है, वेंट अप इन टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के घर में जाके चिट्ठी को यहोवा के चरणों में बिछा दिया है। और उधर यहोवा का दास यशाया अपने घर में बैठा है और उधर यहोवा उससे बातें कर रहा है, यशाया से, अपने दास, अपने नबी से। इधर ये प्रार्थना करके हटा है, उधर यहोवा अपने दास से बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। That which thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria I have heard. This is the word of the Lord hath spoken concerning him. The virgin, the daughter of Zion, hath despised thee and laughed thee to scorn. The daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee. ये देखिए पूरा वचन है जो यहोवा परमेश्वर ने दिया है। आप इसे पढ़िएगा, इस पूरे वचन को। हालेलुया। और आपको मालूम, यशाया नबी की पुस्तक में एक वचन है, हालेलुया, 1 मिनट, हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक में से एक वचन आपको पढ़ के देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा संक्षेप शॉर्ट में करना चाहता हूँ। यशाया नबी की पुस्तक 37 अध्याय, जल्दी से निकालिए। यशाया 37 और उसका 36 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। यशाया 37 का 36। यहोवा परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना सुन ली। वो पूरा चैप्टर आप पढ़िएगा। अब देखिए यहोवा ने जवाब कैसे दिया। यशाया 37 का 36 पढ़े। देन द एंजल ऑफ द लॉर्ड वेंट फोर्थ and smote in the camp of the Assyrian 184,500. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. 2 लाख लोगों की फौज लेकर आया और उसने घेराबंदी की थी। लाकीश से लेके पूरे यरूशलेम को घेरा डाला था। सेनक्रेब बड़ा शक्तिशाली राजा था, ललकारता था, बहुत बड़ी फौज, रथ, घोड़े, हाथी, बड़े जोरावर धनुर्धारी, भाला चलाने वाले, बहुत जबरदस्त योद्धे थे उसकी फौज के अंदर। 2 लाख के 2 लाख इज़राइल को चबा जाना चाहते थे। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मजाक उड़ा रहे थे।
हालेलुया। हिजकिय्याह राजा यहोवा के आगे रोता है चिट्ठी रख के। सेनाओं का यहोवा स्वर्ग से कान झुका के सुनता है। रात आई भाई और बहनों, उसी रात यहोवा ने एक दूत भेजा। एक दूत ने, उसके हाथ में जैसे लेज़र जैसी तलवार थी, उसने अपनी तलवार से 1,85,000 असीरिया के फौजियों के सर उड़ा दिए। उनकी मुंडियां दूर जाके पड़ी, जो कुछ बचे वो भाग लिए, और 2 लाख लोग तंबुओं के अंदर जितना माल खजाना जो कुछ लेके आए थे संग में, सबका सब इज़राइल को मिल गया। जब प्रभु की ओर पलटेगा प्रभु की प्रजा, तब प्रभु काम करेगा, तब प्रभु प्लेग को रोक देगा, तब प्रभु हमारी धरती को ज्यों का त्यों कर देगा। यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम की कहलाती, प्रभु को दूसरी अन्य जातियों से कुछ लेना देना नहीं है। पृथ्वी पे बलाएं, पृथ्वी पे सजाएं मसीह लोगों के कारण आ रही हैं। प्रभु कहता है यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम की कहलाती है मेरी ओर मुड़े और अपने सब बुरे कामों को त्यागे और अपने आप को हलीम करे, अपने सब बुरे कामों को त्यागे और मेरे चेहरे की खोजी हो जाए, तो मैं उनकी पृथ्वी को चंगा कर दूंगा। कलीसिया के कारण जो शाही याजकों का समाज थी और प्रचारकों के कारण जिन्होंने झूठा करप्ट सुसमाचार का प्रचार किया, ये यहोवा का क्रोध आया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो पलटिए प्रभु की ओर, मुड़िए यहोवा की ओर। हालेलुया। सब इकट्ठे होकर प्रार्थना कीजिए, उसके चरणों में आइए, तब चंगा करेगा यहोवा। हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। सच्चे पश्चाताप के रूह को बहा खुदावंद, झूठे नबियों को खुदावंद और झूठे प्रेरितों को सीधा कर खुदावंद, सीधा कर खुदावंद। झूठे कलाम का प्रचार करने वाले जिन्होंने तेरी सेवकाई को कमाई का साधन बनाया है, सिर्फ जिन्होंने प्रभु तेरे घर को चोरों डाकुओं की खो बना दिया है, जिन्होंने अभिषेक को पानी तेल की शीशियों में डाल के बेचा है। खुदावंद तू उठ यीशु मसीह, उठ। तेरे सच्चे कलाम का, तेरी सच्ची इंजील का, तेरे सच्चे वचनों का, तेरे सच्चे मार्गों को जिन्होंने करप्ट किया है, प्रभु यीशु मसीह तू अपनी सदाकत, अपनी सच्चाई को कायम कर, अपने लिए बकिया खड़ा कर। जो प्रार्थना करने वाले, उपवास रखने वाले, पवित्रताई का जीवन जीने वाले हों, यीशु मसीह एक बेदारी भेज हमारे बीच में, बेदारी का आत्मा भेज। तेरे सच्चे कलाम की अगन, तेरे सच्चे कलाम की जलन, तेरे सच्चे कलाम की तलब, तेरे सच्चे कलाम की खोज पैदा कर लोगों के अंदर खुदावन। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हम भारत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। भारत देश के जो पॉलिटिशियन हैं, सरकारें हैं, इनको बुद्धि दे खुदावन। प्रभु तू जस्टिस ला रहा है, तू न्याय कर रहा है। मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ, ये जस्टिस की घड़ी है। तेरा न्याय पृथ्वी पे उतर रहा है और प्रभु तेरा न्याय भूकंपों के रूप में आ रहा है, जलजले सुनामियों के रूप में आ रहा है, महामारियों प्लेग्स के रूप में आ रहा है, फैमिन के रूप में आ रहा है। और प्रभु मैं देख रहा हूँ आत्मा में बहुत सारी शैतानी आत्माएं पृथ्वी पे उतर आई हैं, और साइंटिस्ट और खुदावंद जादूगरी टूना मिल चुका है आपस में, और टेक्नोलॉजी, साइंस, इन चीज़ों के अंदर जो खोजें होंगी वो शैतानी आत्माएं उन्हें वो टेक्नोलॉजी दे रही हैं। और खुदावंद अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को तैयार कर यीशु मसीह। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर, वन वर्ल्ड रिलीजन की ओर दुनिया बहुत तेजी से दौड़ती जा रही है। वॉर्स की, बहुत मासिव वॉर्स की दहलीज पे हम खड़े हैं। पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड विल बी कॉट अप इन ह्यूज वॉर्स। अगर अब आप प्रभु की ओर नहीं मुड़े, अगर इन समयों में आपने तौबा नहीं की और पाप नहीं त्यागा, गंदे काम नहीं त्यागे, मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले टाइम में आपके लिए तौबा करना बहुत हार्ड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। शैतान पलटने नहीं देगा लोगों को प्रभु की ओर।
इसीलिए वचन में लिखा है जो पवित्र हैं पवित्र होते जाएंगे, जो पाप में लिबड़े हुए हैं वो और पाप में लिबड़ते जाएंगे। ये अनुग्रह की विंडो खुली है भाइयों और बहनों, पलट आओ उसकी ओर। और ये सच्चा पैगाम लोगों तक भेजो कि पलटो प्रभु की ओर। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उठे। जैसे सनकरीब का न्याय किया, वैसे परमेश्वर पृथ्वी के जो राजा बने हैं इनका न्याय करने जा रहा है। प्रभु अपनी कलीसिया को खड़ा कर अपनी दुल्हन को यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग तेरा वचन सुनते हैं, प्रभु ये सुन के दूसरे कान से ना निकालें। प्रभु ये जो वचन तूने मुझे दिया है, जो वचन मैंने बांटा तेरे लोगों को, प्रभु ये 250 से ज़्यादा संदेश मैंने दिए हैं, ये सिर्फ कानों की खुजली के लिए नहीं दिए, ये तूने स्वर्ग से दिए हैं। प्रभु तू चाहता है इन आयन में इन लोगों का जीवन ढले। तो प्रभु जी ऐसा कीजिए। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। 6 PM हम सिर्फ 15-20 मिनट के लिए इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे। 6 बजे प्लीज़ 6 PM इकट्ठे हो जाइएगा, जस्ट फॉर प्रेयर फॉर सम टाइम। और ये वचन जो हैं इन्हें सुनिए, बाइबल खोल के पढ़िए, हिब्रू ग्रीक लेक्सिकन में जाके वर्ड ढूंढिए, इनका अध्ययन कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमीन।